Good afternoon to everyone present here. We are very delighted and honored for conducting webinar on Corona ke victim nahi victor bano, organized by Department of Statistics, Veer Narmad South Gujarat University, Surat. Myself, Dr. Sheetal Patel, on behalf of Department of Statistics, Veer Narmad South Gujarat University, I welcome all of you to join the webinar. We are honored this day by the presence of the President of the program, our Honorable Vice Chancellor, Dr. K. Chavda sir, our respected in charge registrar, Shri A.V. Daduk sir. I also welcome our today's speaker of webinar, Dr. Mrugesh Vaishnav sir. I welcome Dr. Aarti Rajaguru madam, organizer and head of the Department of Statistics. It gives me a great pleasure to extend a warm welcome to all the Senate and syndicate members, various faculty deans, all the head of the departments, principal of various colleges, faculty, staff member and students from various departments and colleges who are joining with us on YouTube and Facebook. Now, as per our Indian culture, we start the event with the blessings of God. The event will run perfect up to the end. So I would be pleased to invite Ms. Rudy Dave, alumni of Department of Statistics, MSc Applied Statistics, batch 2016-17, for prayer to Goddess Saraswati. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. I invite our Honorable Registrar Sir, Shri A.V. Daduk Sir, to deliver the welcome address. धन्यवाद मैडम। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन वेबिनार, इसका टाइटल है विक्टिम, कोरोना के विक्टिम नहीं विक्टर बनो। बहुत सुंदर टाइटल है। इस वेबिनार में हमारे मध्य उपस्थित हमारी यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा साहब आपका खूब खूब स्वागत है और साथ आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने ये ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करने के लिए सबको अनुमति दी है। सब आपका स्वागत और आभार। हमारे मध्य मुख्य वक्ता डॉक्टर मृगेश वैष्णव जी उपस्थित है। आप साइकोट्रिस्ट, ऑथर एवं मोटिवेशनल स्पीकर है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सब श्रोता खूब मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप बहुत प्रख्यात मोटिवेशनल है और ये कोरोना काल चल रहा है। हमारे सब वक्ता और एवं जो स्टूडेंट है, अभी एग्जाम भी होने वाली है, तो एग्जाम के साथ ये कोरोना के जो जुड़े हुए हैं जो फैक्टर, उसके बीच ये मोटिवेशनल स्पीच बहुत जरूरी है। सो सब स्टूडेंट को ये उपयोगी होगी। सो और हमारे मध्य हमारे यूनिवर्सिटी के सब प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेनेट मेंबर, सिंडिकेट मेंबर, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स और प्रेस मीडिया के सब मेंबर, सबको मैं आमंत्रित करता हूं और स्वागत करता हूं और ये वेबिनार को सफल होने के लिए शुभेच्छा प्रकट करता हूं। धन्यवाद। Our university, Veer Narmad Dakshin Gujarat University, today is the webinar of Corona ke victim nahi victor bano. On this webinar organized by the Department of Statistics, first we congratulate to the Department of Statistics and his HOD, Dr. Aarti Rajaguru ji. He is our colleague, Dr. S.S. Patel ji, Navsari Agrawal College के principal Dr. वैशाली बेन पारेख, our in charge registrar Sri A.V. Daduk ji, and all Facebook, Instagram, Twitter, all visitors and viewers, and our respected speaker and motivational speaker, Dr. Mrugesh Vaishnav ji. First, with thanks to the Dr. Mrugesh Vaishnav ji. In today, all over India and all over world, we are suffering from the fear of nearest third wave of Corona. In third wave of Corona, we are here. All child will be also affected. So all other 7 million people are suffering from some mind problem. So most useful
necessary and compulsory to repair, change, and all the types of mind. So we thanks for our university and the Department of Statistics. We invite to more and more webinar, this type of webinar. So I request to the all department, every day maybe one webinar are organized for the students' mind. And our registrar also says in future days, exam are going to start. And so many problems in online examination also and offline examination also. Now state are not permit to offline exam due to Corona. Same time, so many problems for the online exam also. But which are more comfortable in this situation is online examination. But students' mindset is going another side. So today most necessary to Corona के victim नहीं, victor बनो. And thanks to the all statistics department and our university and all viewers. Thank you. I ensure the webinar will be profitable and the next few hours will be enjoyable and fruitful for everyone. And I would also like to say the best way to capture moment is to pay attention. This is how we cultivate mindfulness. Now I would like to invite our webinar organizer, Dr. Aarti Rajyaguru Madam, for speaker introduction. Dr. Mrugesh Vaishnav sir, speaker of the today's webinar. Thank you, Dr. Sheetal. Honorable Vice Chancellor sir, Dr. Chawda sir, respected Registrar Dr. A.V. Dhaduk sir, all my colleagues, my friends, all the dignitaries who have joined for the today's webinar through Zoom meeting, through Facebook, or through the YouTube channel of the university. Our today's speaker, Dr. Mrugesh Vaishnav, and all my friends. I convey my namaskar to all of you. To introduce today's speaker, Dr. Mrugesh Vaishnav, there will be hardly anyone who might not be knowing Dr. Mrugesh because he is a very well-known motivational speaker, very well-known psychiatrist, very well-known sexologist. So he has his identity at national as well as international level. I don't know how to mention it, but first of all, I would like to say that as a person, though he is a very person with very high qualities as far as his profession is concerned, his other activities are concerned, but I would say that he is very much down to earth person, which I have felt personally, because when I thought of organizing this webinar, basically it was due to my students' queries and the difficulties they are facing in this Corona period. And one of my colleagues, one of my, I would say, alumni suggested me his name. And when for the first time I called him on his personal mobile, I was very much, in dilemma that I don't know, he is such a person with high intellectual and positions he is holding, how he will be talking with me, and because we are not, knowing each other personally. But the way he accepted my invitation and the way he just say that, Madam, when you are organizing this for the students, why not to include all the students so that maximum number of students can get benefit out of that? And my humble request that because this webinar is for all the students who are within Gujarat and who have come to Gujarat from out of Gujarat. So I requested him to conduct this today's lecture in Hindi, and at the very first request he accepted.
So that made me very surprised that a person with such a high level of dignity and positions is so humble and so down to earth. We are really very thankful, Dr. Mrugesh Vaishnav, for that. एंड क्योंकि आज का प्रोग्राम हिंदी में ही करने वाले हो, तो मैं आगे का जो परिचय है डॉक्टर मृगेश वैष्णव जी का, वो भी मैं हिंदी में देना चाहूंगी। रादर ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। वैसे तो उनकी बहुत सी कॉलम्स मैं खुद बरसों से पढ़ती आई हूँ, लेकिन फॉर दोज हु विल बी लिसनिंग डॉक्टर मृगेश फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए मैं थोड़ा आपका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर मृगेश वैष्णव, उन्होंने अपना मेडिकल की जर्नी जो है वो अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज से शुरू किया था। वहीं से उन्होंने एमबीबीएस और एमडी साइकियाट्रिस्ट की पदवी वहीं से ली है, और उसके बाद 38 साल की एक लंबी जर्नी उन्होंने तय की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 21 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। और ड्यूरिंग दिस 38 इयर्स, इन लंबे 38 ईयर के स्पान में उन्होंने अलग अलग 41 जितने अलग अलग ओहदे पे अपना जो है कौशल्य से काम किया है। और इससे आगे उन्होंने अलग अलग सामयिकों में और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी उनकी कॉलम्स आती रहती है। जो मोस्ट पॉपुलर पिछले 19 साल से मैं खुद पढ़ती आई हूँ, जो कि गुजरात समाचार में वेदना संवेदना की कॉलम है, बहुत ही अच्छा वो लिखते हैं। और उन सब लेखों से हमें भी अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत सारी जो है उलझनों के बारे में जवाब मिल जाते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी है, जिसमें एक हिंदी और एक इंग्लिश किताब की भी समाविष्ट होते हैं, और 14 गुजराती किताबें उन्होंने ऑलरेडी लिखी है, जिनमें से एक किताब का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है, जिसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया है। जैसे मैंने बताया, उनको टोटल 21 अब तक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने समाचार पत्रों की बात करें तो अब तक 3802 आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं, और अलग अलग विषयों पे वो वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, चिंता विना परीक्षा अपनी चावी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैराइटल थेरेपी, प्री मैराइटल काउंसलिंग, सुखी दाम्पत्य जीवन जैसे विषयों, अलग अलग विषयों पर वो आए दिन वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं। उनकी खुद की यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे 150 से ज्यादा उनके यूट्यूब वीडियोस भी अपलोडेड है अलग अलग विषयों पे। और हर मंगलवार को उसी यूट्यूब चैनल पे वो एक गुजराती वीडियो और हर शनिवार को एक हिंदी वीडियो अचूक वो अपलोड करते हैं। एंड दिस इज ए कोइंसिडेंस ओनली कि हमारा कार्यक्रम भी आज शनिवार को है, और मैंने तो ये मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने तो ऐसे ही उनको रिक्वेस्ट किया था कि आज का सेमिनार भी हम हिंदी में करेंगे। तो ऐसी प्रतिभा हमारे साथ है आज, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि किसी भी फैकल्टी का स्टूडेंट हो, यूजी का हो, पीजी का हो, हर एक स्टूडेंट को आज का ये कार्यक्रम जो भी अटेंड कर रहा है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कि जबकि इन नियर फ्यूचर 10 जून से अलग अलग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट होने जा रहे हैं, और जिसके लिए ये जैसे मैडम ने बताया, शीतल मैडम ने, कि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो पिछले 18 महीने में जिस तरीके से टीचिंग हुआ है, और कई बार कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आया है, और ये सब सारी परिस्थितियों को देखते हुए स्टूडेंट्स के दिमाग में, उनके मन में काफी सारी प्रॉब्लम्स है, काफी सारी एंजाइटीज पैदा हुए। वो सारी चीजें उनके एग्जाम के परफॉर्मेंस पे असर ना करे, उसके लिए हमने सर को रिक्वेस्ट किया है। नाउ आई इनवाइट आवर टुडे स्पीकर डॉक्टर मुकेश वैष्णव जी, एंड मैं खेद व्यक्त करती हूँ कि ये कार्यक्रम हम थोड़ा सा लेट शुरू किए हैं, बिकॉज कि अदर वेबिनार यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चल रहा था।
उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी मैं डॉक्टर मृगेश वैष्णव को आमंत्रित करती हूँ उनके वक्तव्य के लिए। डॉक्टर मृगेश वैष्णव। नमस्कार, धन्यवाद आरती बहन राजगुरु, वाइस चांसलर श्री किशोर सिंह जी चावड़ा, रजिस्ट्रार श्री, अन्य कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर्स, सेनेट मेंबर्स, अन्य अध्यापक गण और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। बेसिकली मैं एक गुजराती हूँ, पढ़ा भी गुजराती में हूँ, एक छोटे से गांव में, लेकिन हिंदी में बोलना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं ये कहूंगा कि आरती बहन ने जो परिचय दिया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज लहरों में उमंग है, तीर पर कैसे रुकूं मैं। आप कहेंगे उमंग कैसे? कोरोना चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज नहीं की, एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहा, स्टडीज तो ऑनलाइन ही हुई। और अब जब एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, इस माहौल में उमंग कैसे लाए? यही काम मैं करना चाहता हूं कि आज आपके हौसले इतने बुलंद हो जाए कि आप आने वाली जो एग्जाम है वो बहुत आसानी से उसमें अपना योगदान दे सको, उसमें आसानी से उत्तर दे सको। विद्यार्थी मित्रों, एक छोटी सी पृष्ठभूमि का मैं बताऊंगा। आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान में कोरोना वायरस का सबसे पहला केस आया और उसके बाद वो ऐसे फैला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक यानी महामारी का नाम दे दिया। और इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग जगह पे लॉकडाउन किए गए। इसमें 25 मार्च से हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ। लोगों को मोटिवेट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जिस तरह से महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, इसी तरह से ये लॉकडाउन 21 दिन चलेगा और हम कोरोना पर विजेता हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना एक अलग प्रजाति थी और उसने कुछ और ठाना था। देखिए, उसके बाद लॉकडाउन लंबा होता गया, लोग घर पे बैठे रहे, बाहर नहीं निकल सके, अपना व्यवसाय, अपनी स्टडीज कुछ भी नहीं कर सके। आखिरकार 1 जून 2020 से अनलॉक शुरू हो गया। ये अनलॉक शुरू हो गया तब लोग ये पूछ रहे थे कि क्या कोरोना चला गया? हम कहते थे नहीं, कोरोना का मेडिकल एंड नहीं आया है और आज तक भी उसका मेडिकल अंत नहीं आया। उसका अगर अंत आया है तो आर्थिक अंत आया है, राजकीय अंत आया है, क्योंकि हमें दुनिया चलानी है। कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हैं, इसलिए लॉकडाउन गया है, लेकिन कोरोना नहीं गया है। एक वेव आ गई, उसके बाद अनलॉक होते होते हमने ये सोचा कि अब तो कोरोना चला गया और हम बिल्कुल जो उसके लिए पाबंदियां थी कि मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन अपने हाथों को करते रहे, इस बातों को हम भूल गए। फिर से हम पार्टी करने लगे, मीटिंग करने लगे और दिवाली आई तो दिवाली की काफी लोगों में परचेज का उत्साह था, तो वो भी हमने पूरा किया। और उसके बाद ही कोरोना की दूसरी वेव आ गई। पहली वेव में जब 3.25 लाख तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई थी, उतने लोग ऑलमोस्ट 2-4 दिन में होने लगे। लोग घबरा गए।
इस वेव का भी अंत हो गया। जनवरी में हमारे यहाँ टीकाकरण शुरू हुआ और टीकाकरण शुरू होते हुए ये माना गया कि अब कोरोना नहीं आएगा। लेकिन हम बार बार कहते थे कि अगर पिछले हमारे यहाँ जो इन्फेक्शंस हुए हैं, जो महामारी हुई है, वो चाहे ब्यूबोनिक प्लेग हो जो 6th सेंचुरी में शुरू हुआ था, 13th सेंचुरी में वो फिर से दिखाई दिया जिसने चीन की आधी आबादी और यूके की 1/3 आबादी और इंडिया के 1,20,00,000 लोगों की जान ले। उसके बाद स्मॉल पॉक्स आया। ये एक ही ऐसी महामारी है जिस पर हम विजेता हो सके हैं, उसका वैक्सीनेशन आ गया है। बाकी जो दूसरी महामारी हुई, चाहे सार्स वायरस हो, चाहे उससे पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसने भी हमारे देश की 30 करोड़ में से 5 करोड़ की आबादी को खत्म कर दिया। तो ये बातें हमें इसलिए ध्यान में रखनी है कि अभी भी कोरोना गया नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि गया है और सारे क्रिकेट मैच में और काफी सभाओं में व्यस्त हो गए। परिणाम स्वरूप तीसरी लहर, यानी जो दूसरी लहर मानी जाती है, वो दूसरी या तीसरी लहर आई और इसमें तो हमने सारे जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए और जो अफेक्टेड मरीज थे उनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई। अब जब ये बात चल रही है और अब हम इस माहौल में कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर आएगी, वो बच्चे और विद्यार्थियों पर, युवा वर्ग पर ज्यादा तौर पे असरकारक होगी। ये देखते हुए हमें हमारे हौसले बुलंद करने हैं। हमें सबसे पहले ये कहना है कि ये मायना नहीं रखता है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी। मैं मानता हूं कि कोरोना की समस्या बहुत बड़ी है। मैं ये जानता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने के बाद, या तो ऑफलाइन पढ़ने के बाद, मिक्स पढ़ने के बाद ऑनलाइन एग्जाम देना, ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप अपनी समस्या को आसानी से हल कर सकते हो, इसमें दो बात नहीं है। युवा वर्ग की 2 समस्या होती है। मैं कैरियर की समस्या पर आऊं उससे पहले मैं जो रिलेशनशिप्स की समस्या उसकी 4-5 मिनट में बात करूंगा। कोरोना काल में लॉकडाउन था तो काफी लोगों को कॉलेज खुले हुए नहीं थे, काफी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल नहीं रहे थे। इस बीच काफी युवा लोग अकेलेपन का एहसास करते हुए बीमार होकर हमारे पास आते थे। एक लड़की आई और उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को कोरोना हो गया है। जाने मानो आसमान टूट पड़ा। उससे पहले उसे कोरोना का कुछ पता ही नहीं था। युवा लोग भीड़ में जमा होते थे, लेकिन जब अपनों को हुआ तो उनको पता चला, और वो भी ऐसे माहौल में कि ऐसी परिस्थिति है लेकिन हम उसके पास नहीं जा सकते, उसे मिल नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। गुजराती में एक बहुत बढ़िया शायरी है, समय एवो विरहમાં व्यर्थ बीते છે કે તારે ત્યાં અમે અવસરની પેઠે પણ ઉપસ્થિત થઈ નથી सकता। ये हालात उसके मन में हुए। दूसरा एक लड़का आया। लड़के ने कहा कि इस कोरोना काल में मुझे पता चल गया कि कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता है, सबको पता चल गया है ये कोरोना काल में कौन अपना है और कौन ख्याल करता है। लेकिन उस लड़के ने कहा वो बात कुछ ऐसी थी कि मने तो प्रेम नो बस आटलो इतिहास लागे छे, प्रथम ए सत्य लागे छे, पछी आभास लागे छे। तो ये काफी युवा दिलों की जो समस्याएं थी, जो अकेले रहना पड़ा, अब भी रहना पड़ रहा है। बीच में वैलेंटाइन डे के लिए खुल गया था, वैलेंटाइन वीक के लिए खुल गया था, लेकिन आज फिर से कोरोना है। कुछ लोगों ने कोरोना के इस काल में क्या किया, एक पिताजी उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बेटे को लेकर आए। उनकी शिकायत ये थी कि बेटा अपने कमरे में पूरा दिन रहता है, पता नहीं चलता है कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है।
बेटे ने कहा क्या बुरा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क नहीं पहनना है तो अपने कमरे में रहता हूं, बात तो सही है। लेकिन वो कमरे में क्या कर रहा था जिससे उसके माता पिता को आपत्ति थी? वो अपने कमरे में 18 से 20 घंटे वो या तो गेमिंग ऐप पर रहता था, या तो व्हाट्सएप पर रहता था, या तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या तो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो कई युवा लोगों को ये लत लगी है इस कोरोना काल में, वो पोर्न हब पे रहता था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पोर्न हब ने जो अपने डेटा डिक्लेयर किए उसमें ये लॉकडाउन के काल में 95% उसके जो यूजर्स थे वो इंडिया युवा थे। उन्होंने ये बताया कि 710 मिलियन यानी 71 करोड़ इंडियंस पोर्न हब पे जाते थे। तो ऐसी सारी समस्याएं कोरोना काल में युवा वर्ग ने महसूस की। अब वक्त आया है कि हमारे पास वैक्सीन आ गया है, हम वैक्सीन का डोज लें और वैक्सीन का डोज लेकर भी हम मास्क पहनना न भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग न भूलें, सैनिटाइजेशन न भूलें और कोरोना का सामना करते रहे, कोरोना के साथ जीना सीख लें। क्योंकि ये कितना चलेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तीसरी लहर तो आएगी, उसके बाद चौथी लहर आएगी या नहीं, ये वैक्सीनेशन कितना होता है हमारे देश में उस पर निर्भर है। अभी जो आपकी समस्या है कैरियर की समस्या, उस पर मैं आ रहा। आपके एग्जाम से काफी मन में डर है, क्या होगा, याद आएगा नहीं आएगा, क्या लिख पाऊंगा, कैसे होती है ऑनलाइन एग्जाम। अरे ये तो ओपन है, आप बुक्स लेकर भी बैठ सकते हो, डर क्यों है? पहले तो ये कहता हूं। दूसरी बात, चाहे ये एग्जाम हो चाहे दूसरी एग्जाम हो, आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि परीक्षा से आपका जीवन, आप खुद ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये परीक्षा है, इसको आप एक क्रिकेट मैच समझ लीजिए। ये जिंदगी है, इसको आप एक क्रिकेट मैच समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, आपके सामने से, सामने के छोर से खिलाड़ी है, एग्जाम से, समस्या है, कुछ भी है, वो एक के बाद एक ऐसे बॉलिंग डाल रही है। देखिए ये ऐसा क्रिकेट है जिसमें न तो पीछे स्टंप्स है, जिसमें न तो पीछे विकेट कीपर है, जिसमें न तो मैदान पर कोई है, आप हो और आपकी समस्याएं जो सामने से आ रही। समस्याएं तो आती रहेगी, किसी भी जिंदे आदमी को समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या किसको नहीं होती है? मुर्दे को समस्या नहीं होती, क्योंकि एक बार आदमी मुर्दा बन जाए फिर इसका क्या करना, वो समस्या लोगों की होती है, मुर्दे की समस्या कभी नहीं होती। तो समस्या आएगी, समस्या एक के बाद एक, चाहे एग्जाम की हो, आप जो अभी आ रहे हो, बॉलिंग करेगी, आप डटे रहोगे पिच पे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे अच्छी तरह से आप उस समस्या का सामना न करो या करो, आप अगर खुद इस मैदान से बाहर नहीं जाओगे तो आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। मान लो पहला बॉल आया, आपने बिल्कुल निशाना लगा के शॉट मारने का सोचा, आप विफल हो गए। दूसरा बॉल आया, ये दूसरी समस्या आ गई कि ये विषय आया है, क्या करूं, ये विषय आया, इसमें कैसे जवाब दूं। आपने कोशिश की, बैट और बॉल का समागम नहीं आया। तीसरा चला गया, चौथा चला गया और पांचवा बॉल और आपने लगा लिया छक्का। यानी मेरा कहना है कि समस्या आती है तो हर समस्या की एक अवधि होती है और अपनी अवधि में ये समस्या बिल्कुल पूरी हो जाती है, इसमें दो राय नहीं। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है। सारे न्यूज जहां पर आते हैं नेगेटिविटी होती है। कुछ सही बात है, समाचार देने के लिए आपको वीडियोस दिखाने पड़ते हैं, इसमें कुछ स्मशान के समाचार आते हैं, कुछ मुर्दों के समाचार आते हैं, कुछ स्मशान में लाइन लगी है वो भी समाचार आते हैं, कुछ समाचार ऐसे आते हैं जैसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, व्यथित हो जाते हैं।
कभी ये भी देखते हैं कि हमारी पास में कोई मर गया और उसको जाते हुए देखा। तो ऐसी समस्याएं जब आती है, जब नेगेटिविटी आती है, हमेशा हमेशा समाचार में नकारात्मक न्यूज आते हैं। आप व्हाट्सएप पे करोगे, वो भी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें काफी लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको अलग अलग मैसेज देती रहती है। क्या करना है आपको? एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूं। अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम आते ही वो बाहर निकल आएंगे। मेढक, ऐसे ही मेढक बाहर निकल आए। मेढक 5-7 मेढक बारिश के मौसम में चल रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक बड़ा खड्डा आया, एक बड़ा खड्डा आया और उसमें 3-4 मेढक गिर गए। खड्डा बहुत ही गहरा था, बाहर निकलना मुश्किल था, जैसे कोरोना में होता, और कोशिशें करना ही बेकार था। तो इन 2-4 मेढक जो गिर गए, उसको खड्डे में देखकर जो दूसरे बुजुर्ग मेढक थे वो उस खड्डे के किनारे पर आ गए और बोले कि देखिए वक्त बहुत भयानक है, कोई कोशिश मत कीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, ये तो ईश्वर की इच्छा है, जो होगा सो होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोशिश मत कीजिए आप। और कोशिश करके परेशान होके आप बेवजह दुख भरी, पीड़ा भरी मौत को मत आमंत्रित कीजिए, लेकिन आप बस पड़े रहे। 3 मेढकों ने तो ये बात सुन ली, वो पड़े रहे, मर गए। चौथे मेढक ने उनकी बात नहीं सुनी, वो वहां से जंप लगाता रहा। देखिए जितनी थी कोशिश करता रहा, वो उसको खून भी निकला, घाव भी लगे। ऊपर जो मेढक थे, बुजुर्ग मेढक थे, वो बुजुर्ग मेढक उससे कहने लगे कि मत कर कोशिश, क्यों इस तरह से पीड़ा की मौत को आमंत्रित करता है, तू जी तो नहीं पाएगा, तू ऊपर आ तो नहीं पाएगा, मत कर कोशिश, मत कर कोशिश, मत कर कोशिश, कहते रहते थे। जितना ये लोग कह रहे थे कि मत कर कोशिश, उतना वो मेढक और छलांग लगाता रहता था। जितना वो लोग कहते थे मत कर कोशिश, ये मेढक और छलांग लगाता था। और ये बोलते रहे बुजुर्ग मेढक, और छलांग लगाता लगाता वो मेढक गड्ढे से बाहर निकल गया। अब देखिए ये हुआ तो जो बुजुर्ग मेढक थे उनको पीड़ा तो जरूर हुई कि भाई ये इसने हमारी बात नहीं मानी और वो सफल हो गया। तो बुजुर्गों को पीड़ा तो होती है कि हमारा इतना अनुभव है, तजुर्बा है, इसने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर भी वो विजेता हो गया, सब उसके पास गए ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने पूछा कि हम इतना समझा रहे थे, तुमने सुना नहीं? बात करते वक्त पता चला कि वो मेढक बहरा था, सुन नहीं सकता। जब ये लोग ये कह रहे थे कि मत कर, मत आ, मत कोशिश कर, क्यों पीड़ादायक मौत को आमंत्रित करता है, तब ये ऐसा सोचता था कि ये मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, और वो और छलांगे लगा। तो सबसे पहले आपको ये नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव लोग हैं, ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है। हर एग्जाम में आपको आसपास नेगेटिव लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कोर्स लंबा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है, मुझे याद नहीं रहता है, पता नहीं वो एग्जाम हॉल में मैं बैठूंगा, अभी तो आप ऑनलाइन देंगे, लेकिन पता नहीं है मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो मैं कुछ लिख पाऊंगा या लिख भी नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें करने वाले जो लोग होते हैं उससे दूर रहिए। अपना हौसला आप खुद बना के रखिए, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ इस समस्या को सुलझाने में रहेगी नहीं। दूसरी बात, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। जब मुश्किलें आती हैं, जब एग्जाम्स आती है, तो ऑटोमेटिक है एग्जाम्स होगी, इंटरव्यू होगा, 5 लोगों के बीच में बात करनी होगी, तो एंजाइटी तो होगी, और ये तो परफॉर्मेंस एंजाइटी है। तब क्या होता है, मन में शंका होती है, मन में शंका होती है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। दो ही बात होती है, या तो आप उत्तीर्ण होते हो या तो आप फेल होते हो, तीसरी बात तो होती नहीं। तो यही होता है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा।
देखिए, आप जो भी है, जहां भी है, देखिए आप अंडर ग्रेजुएट है, आपकी स्टडी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बन सकते हो, लेकिन जरूरी ये है कि आप जहां भी हो, जो भी हो, जिस जगह पर हो, वहां आप सर्वश्रेष्ठ बने रहे। देखिए, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि अमिताभ बच्चन बन गया इतना बड़ा, तेंदुलकर बन गया, गांगुली बन गया, विराट कोहली बन गया, धोनी बन गया, इतने स्टार्स बन गए और आप कुछ नहीं है, मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए, मैं कुछ नहीं हूं, इसमें पास नहीं हो पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं हूं, सबसे पीछे रह जाऊंगा। ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, सारे जो बड़े लोग हैं, कोई बड़ा नहीं है। अगर आपके पास उनके मन को खोलकर उनके विचार देखने की क्षमता होती तो आपको पता चलता कि ये भी अपने आप पर कितनी आशंका जताते रहते हैं, ये लोग भी कितने अंधविश्वासी होते हैं, यह आपको तब पता चलेगा। यानी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो लोग बड़े, आप अपने आप को मत समझो, अपने आप को छोटा मत समझो, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, आप अपना हौसला बढ़ाओ, आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ ताकि आप किसी भी तरह की मुश्किल है उसका सामना कर सके। अगर आप मान लो आप तो सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो कोई चाय बनाने वाला तो नहीं बनने वाला है, लेकिन अगर आप चाय बनाने वाले हो तो भी आप ऐसे चाय बनाने वाले होने चाहिए कि आपके ठेले पर लोगों की कतारें लगनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप एक टेलर हो तो आप ऐसे टेलर होने चाहिए उस शहर में कि आपकी दुकान के बाहर जब शादी का मौसम आता है तब सूट और शेरवानी सिलाने के लिए लोगों की लाइन लगनी चाहिए। जिस क्षेत्र में हो, जहां भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की आप मन में कामना रखो। और ये कब हो सकेगा? अगर आप पॉजिटिव रह पाओगे तो। आप मन में अपने आप पर आशंकाएं जताते रहेंगे, आप मन में अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। इसलिए देखिए, हर एक व्यक्ति के मन में प्रतिदिन 6,000, 7,000, कई लोग कहते हैं 60,000, यानी इतने सारे विचार आते हैं। विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं, विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं। लेकिन जिस विचार का आपने ध्यान दिया, जैसे अभी एग्जाम है, आपने एक विचार आया कि क्या करूंगा मैं, ऑनलाइन एग्जाम होगी, पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, अगर ऐसा आया, आपने उस पर गौर किया, आपने अगर कोशिश की कि नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं ये करूंगा, मुझे ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसा करके अगर आपने उस विचार के सामने लड़ने की, उस विचार को दबाने की अगर कोशिश की, तो ये विचार आपके चित्त का केंद्र बन जाएगा। ये एक मैकेनिज्म जो मन की है, इडियोसिंक्रेटिक मैकेनिज्म जो मन की है, उसे समझ लीजिए। किसी भी बात को, कोई किसी भी विचार को आप रोकने की एक्टिवली कोशिश मत कीजिए, भगाने की, उससे लड़ने की एक्टिवली कोशिश मत कीजिए, तो विचार चला जाए। अगर एक्टिवली कोशिश करेंगे तो वो विचार आपके दिमाग में चिपक जाएगा, अटक जाएगा और आपके चित्त का केंद्र बन जाएगा। फिर यही विचार आपके इमेजेस, आपकी परिकल्पनाएं, आपके सपने, रात को वही विचार आएंगे, क्या होगा, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं क्या होगा, मैं ऑनलाइन एग्जाम में बैठा हूं क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। यानी जिसको भगाने की, जिसके साथ लड़ने की आप कोशिश करेंगे, वो आपके चित्त का केंद्र बन जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, जो होगा सो होगा, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, अभी मुझे अपने आप जितनी भी हो सकती है उतनी प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद में एग्जाम आएगी
जो भी जवाब लिखना चाहूंगा, जो भी याद आएंगे वो जवाब में लिख दूंगा, बस कोई बात नहीं। आपका काम है अभी सिर्फ मेहनत करना, कंसंट्रेशन से पढ़ना, दूसरा आपका कोई काम नहीं। ये मायना नहीं रखता है कि रिजल्ट क्या आता है। वो जो भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप जो कर्म कर रहे हैं उसी में आप अपना ध्यान लगाए रखो, बाकी सारी बातें छोड़ दो, फिर जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हम ये नहीं कर रहे। कई बच्चे आते हैं, बच्चे के माता पिता आते हैं, 12th में कितने नंबर आए? 96, 94, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस बिल्कुल बेकार है, जो सोचा था जितनी मेहनत की थी उतने नहीं आए। कितने कम आए? 1-2% हमारे यहाँ कहते हैं कम आए। उसमें तो उनको ऐसा लगता है कि सारी उनकी जायदाद जीवन भर की चली गई। ऐसा रवैया कभी भी जिंदगी में मत रखो। जो भी है, आप जो भी कर पाते हो वो कर पाओगे, और फिर जिंदगी में तो ऐसे कई एग्जाम्स आएंगे, ऐसे कई मकाम आएंगे जिसमें आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, भावनाओं को कंट्रोल करते हुए बस वही मैदान पर टिके रहना है। जिंदगी के मैदान पर टिके रहना है। समस्या आती रहेगी, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जहां तक, यानी जो कहते हैं, क्योंकि जापान में ये जो कोरोना हुआ 2020 में, उससे आत्महत्या के परसेंटेज इतने बढ़ गए कि अभी फरवरी में जापान ने लॉनलीनेस और सुसाइड मिनिस्ट्री शुरू कर दी। उससे पहले ब्रिटेन ने 2019 में 18 में ये लॉनलीनेस और सुसाइड मिनिस्ट्री शुरू कर दी थी। यानी अगर आपको ऐसे ख्याल भी आए तो ये सोचो कि किसी भी समस्या का हल होता है। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसकी वजह से आप उसके सामने टिक न सको। देखिए, पीपल विल ब्रेक यू, पीपल विल शेक यू, पीपल विल हेट यू, बट इट इज यू एंड यू ओनली हु हैज टू मेक यू। और आपको अपने आप को बिल्कुल बना के रखना है। कभी भी जिंदगी में, अटल जी ने कहा है, हार नहीं मानूंगा, रार यानी रास्ता, रार नहीं ठानूंगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो रिलेशनशिप की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे जिंदगी की किसी भी प्रकार की समस्या हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं हमेशा रार नहीं ठानूंगा। ये बात आप अपने दिमाग में अंकित करके रखिए। दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये संभव नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो असंभवता आपके सामने खड़ी रह जाएगी और आप वो काम नहीं कर पाओगे, ये नकारात्मक सोच नहीं कर पाओगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज तक कम से कम 3000 से ज्यादा वनडे मैच खेले गए और 3,500 से ज्यादा वनडे मैच खेले गए। देखिए, जहां तक 1900 वनडे खेले गए थे, वहां तक किसी ने यह सोचा नहीं था कि वनडे क्रिकेट में कोई सेंचुरी लगा सकता है, डबल सेंचुरी लगा सकता है। फिर क्या हुआ, कपिल देव ने नाबाद 125 रन बना दिए, और वो भी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में। तब लोगों को लगा कि हाँ, सेंचुरी लग सकती है। लेकिन किसी ने 175 रन तक बना दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि डबल सेंचुरी भी वनडे में लग सकती है। 2010 में किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, ये संभव है। उसके दिमाग में ये आया कि मैं ये कर सकता हूं। उसने अपने आप को कन्विंस किया कि ये मैं कर सकता हूं। उसने अपने आप का हौसला बढ़ाया कि हाँ, ये मैं कर सकता हूं। और 2010 में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर मैंने वनडे में दोहरा शतक लगाया।
उससे पहले जो जो खिलाड़ी जाते थे मैदान पर, ये सेंचुरी मारने का सोचते थे, 150 रन बनाना, 160-70 रन बनाना सोचते थे, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि इसमें दोहरा शतक लग सकता है। इसने सोचा और उसने किया, करके दिखाया। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने तो 3 दोहरे शतक लगाए, क्रिस गेल्स ने लगाए, गुप्तिल ने लगाए। यानी सब लोग सबसे पहले सफल या निष्फल अपने मन में होते हैं, उसके बाद ही बाहरी दुनिया में सफलता या निष्फलता आकार लेती है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। काफी लोग आते हैं। कभी एक क्रिकेटर आया था, रणजी में खेला था और काफी स्टेट की टीम में था, आगे भी उसे लिया गया था, आया बहुत ही हताश था। उसने कहा कि ऐसे माहौल, जब कोरोना है, जब चारों ओर नेगेटिविटी है और कोई संभावना ही नहीं है, तब पॉजिटिव कैसे है? मैंने कहा आप युवा थे, 17-18 साल के थे, आप कहाँ थे? उसने बोला एक छोटे गांव में। मैंने कहा उस वक्त जब आपने ये सोचा कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा, क्रिकेट कोचिंग कैंप शुरू करूंगा, फिर क्रिकेट खेलूंगा, फिर इस टीम में जाऊंगा, लोग क्या कह रहे थे? बोला लोग हंस रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि तू ये नहीं कर सकता, कि ये कभी नहीं हो पाएगा, छोटी मोटी नौकरी ले ले, स्कूल में कहीं टीचर बन जा, ये कर। उसने बोला नहीं, मैं ये जाऊंगा। मैंने कहा इसी तरह से उस वक्त इतनी नेगेटिविटी आपके आसपास थी, उसके बावजूद भी आप क्रिकेट कोचिंग कैंप में गए, आपने जो पाना था वो हासिल किया। इसी तरह से ये कोरोना का इतना नेगेटिव माहौल है, उसमें भी उस वक्त जो आप में एंथुजियाज्म था, जो एम्बिशंस थी, जो आप प्रोत्साहित थे, उसी को याद रखो। अगर आप मन में सोचोगे तो बाहर हो सकते। देखिए एग्जाम्स में पहले से ही आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो सोचोगे, जो कल सोचा था वो आज हो, जो आज सोचोगे वो कल आप हो पाओगे। अगर आज आप कुछ नहीं बन सके हो तो किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप पॉजिटिव सोचो, कल आप जो सोच रहे हो वो जरूर हो पाएगा। इसमें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। अगर आपने सोच लिया, बड़े बड़े सपने देख लिए कि मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, और फिर नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये करने के बाद आपने क्या किया? आप सो गए, या तो आप व्हाट्सएप सर्फ करने लगे, फेसबुक पे लगे रहे, इसलिए आप नहीं कर पाए। देखिए फिर से बात कर रहा हूं, वही आदमी 2007 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी। ब्रेड हॉग नया से नवसीखिया बिल्कुल बॉलर था। ब्रेड हॉग उसकी पहली मैच थी, सचिन तेंदुलकर सामने था। उस वक्त वो लोगों के छक्के छोड़ देता था। ब्रेड हॉग ने पहले ही बॉल पर सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। खुशी का माहौल छा गया। मैच पूरी हुई। ब्रेड हॉग वही मैचेस बॉल जो सीजन बॉल था उसको लेकर सचिन के पास गया और बोला कि सर आपका सिग्नेचर इस पर कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी घटना है। आप इतने सीनियर खिलाड़ी हो, इतने नामी खिलाड़ी हो, और मैं नवसिखिया हूं। सचिन तेंदुलकर ने उसके सामने देखा और देख के हाथ में लिया वो, और उसमें लिखकर उसको दिया। क्या लिखा इसमें? यू विल नेवर सी दिस मोमेंट अगेन इन योर लाइफ, सचिन। देखिए लिखने के बाद यानी ऐसा तेरी जिंदगी में मौका दोबारा नहीं आएगा। सपने मत देख। ऐसा लिखने के बाद सचिन सो नहीं गया। कोका कोला की एडवर्टाइज भले ही करता हो, लेकिन वो पीता नहीं रहा। वो तो बोलता था इट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट। यानी उसने बहुत ही प्रैक्टिस की, सारे वीडियोस देखे, उसकी सारी बॉलिंग देखी। उसके बाद ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर का 35 बार अलग अलग T20 टेस्ट मैच, वनडे मैच, उसमें मुकाबला हुआ, लेकिन कभी भी ब्रेड हॉग को सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं मिली। यानी वो प्रैक्टिस करता रहा। ये एग्जाम में भी जरूरी है
कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते ही रहो, प्रैक्टिस करते करते आप इसमें जरूर बाहर आ जाओगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। इसी माहौल में मैं, कोरोना के माहौल में मैं एक आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, बहुत गंभीर है, सीरियस है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आप इसको अगर तीसरा विश्व युद्ध समझ ले तो आप दूसरे विश्व युद्ध की घटना को देखें। तब ऑस्ट्रिया में सारे यहूदियों को हिटलर के नाजी सैनिकों ने कैदी बना लिया था। उन कैदियों को ट्रेन में या उसमें ले जा करते थे और उसने, हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे। और उस कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था कि जो बूढ़े थे, जो औरतें थी, उनको गोली मार दी जाती थी या तो गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, और जो सशक्त थे, युवा थे, कुछ कर सकते थे, उनको मजदूरी के लिए भेज दिया जाता था। एक आदमी जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, विक्टर फ्रैंकल, जो ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट बाद में हुआ। विक्टर फ्रैंकल के साथ ये हुआ, उसके पिताजी को, उसकी पत्नी को उसके सामने मार दिए गए और विक्टर फ्रैंकल को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। 3 साल विक्टर फ्रैंकल ने इस कंसंट्रेशन कैंप में निकाले। देखिए, हमारे कोरोना के 1.5 साल हुआ है, फ्रैंकल ने 3 साल निकाले। क्या जाती होती थी उनके साथ। सारा दिन हिटलर के सैनिक उसके पास काम करवाते थे, नंगे पांव, कुछ नहीं करना है, पांव में छाले पड़ जाते थे, थक जाते थे, और खाने के लिए एक सूप और एक डबल रोटी, ब्रेड जिसे कहते हैं, वो दिया जाता था। उन पर काफी अत्याचार किए जाते थे, इसके काफी सहयोगी। और जिस जगह पर 200 लोग रह सकते थे, वहां 1500-1700 लोगों को वो भरते थे। सोना मुमकिन नहीं था, दिन में काम करना था। काफी लोग जो इलेक्ट्रिक वायर वाली जो उनकी जो बनाई गई थी, वो उस पर लटक के मर गए। काफी लोग चले गए, दुर्बल हो गए, बीमार हो गए, गैस चैम्बर में चले गए। ये आदमी टिका रहा। अब आशा क्या कहते हैं वो आपको बताता हूं। उसके साथ उसका एक दूसरा दोस्त था। उस दोस्त को कहीं से समाचार मिल गए कि अमेरिकन सेना आ रही है और वो हिटलर की सेना पर और ये कंसंट्रेशन कैंप पर हमला कर रही है और हम सबको छुड़ा रही है। ये समाचार उसके पास फरवरी में आया। उसने विक्टर फ्रैंकल को बताया कि ऐसा हो रहा है। फिर ये, और ऐसा होगा 31 मार्च तक होगा। ये 1943 की बात है। उसने बोला 31 मार्च तक होगा। फरवरी में तो बहुत उत्साह से वो भरा हुआ था। मार्च आया और मार्च की 28 आई, कुछ नहीं हुआ। उसने खाना छोड़ दिया। 29 तारीख, 30 तारीख को उसको बुखार आया और 31 को वो मर गया। विक्टर फ्रैंकल लिखता है अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में कि अगर आपके पास किसी भी कठिन समय में कुछ करने का मकसद है तो आप उस कठिन समय में टिक पाओगे। उसने अपना मकसद खो दिया और वो इस समय में टिक नहीं पाया। विक्टर फ्रैंकल उसके बाद भी कंसंट्रेशन कैंप में रहे। एक दिन ऐसा आया इसके बाद कि सारे जो सैनिक थे उसके, हिटलर के, वो करीबन 1000 मुर्दे को लेकर वहां आए। इस कंसंट्रेशन कैंप में से 5 लोगों को बुलाया गया। इसमें एक विक्टर फ्रैंकल था। और 5 लोगों को बुला के उसने ये कहा कि आप ये सारे मुर्दे हो, वो आपको सायंकाल होते हुए हमने यहां से 5-10 किलोमीटर दूर एक गड्ढा रखा है, वहां वो आपको डाल देना। तो वो उनको सूचना दी। 4 लोग तो इसमें से डर गए कि ये मुर्दे हमारा क्या होगा। कांपते कांपते उन्होंने ये मुर्दा उसमें, वो जो मुर्दे थे वो डालते गए। 5वां था, इसने सोचा कि नहीं, मेरा अभी मकसद है यहां से जाके मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करके लोगों को बताना है। तो उसने क्या सोचा, जब सारे मुर्दे अंदर चले गए तो उसने सोचा कि मैं भी मुर्दा बन जाऊं। वो मुर्दा बन के उसमें सो गया। विक्टर फ्रैंक, वो नाजी के जो सैनिक थे हिटलर के, वो आए। उन्होंने चारों को गोली से उड़ा दिया। बोला 5वां गया, कहाँ गया? कहीं नहीं थे, कहीं मिला नहीं। तो ये ट्रक लेके चले गए
और वह खड्डे के पास गए, रात बुरी हो गई तो उन्होंने सोचा कि कल मुर्दे को अंदर डालेंगे, आज क्या करना। तो ये आदमी, सैनिक चले गए और आदमी नंगा नंगा 20 किलोमीटर चल के वो अपने गांव तक आया। यानी किसी भी हालात में अगर आप अपना मोटिवेशन बढ़ा के रखोगे तो जरूर किसी भी हालात में आप जीत सकते हो। अंत में सारे युवा विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी आंखों में मंजिल है, आप कुछ बनना चाहते हो, आप जरूर वो बन पाओगे। आंखों में मंजिलें हैं, कदम लड़खड़ाए, कई बार जिंदगी में कदम लड़खड़ाए और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें हैं, कदम लड़खड़ाए और संभलते रहे। ये कोरोना की आंधी में, ये कोरोना की आंधी में कहां दम है कि आपके उम्मीदों के चिराग इस आंधी में भी जलते रहेंगे, जलते रहेंगे और आप इसमें से बाहर निकल जाओगे। हम सब इसमें से बाहर निकल जाएंगे। वो सुबह आएगी ही आएगी। आप ये एग्जाम्स की जो चिंता है, जो एक नई स्टाइल की एग्जाम है, उस चिंता में से भी आप बाहर उभर आओगे। सुबह आएगी आएगी। ये जो कठिन वक्त है वो आपको कुछ बना के छोड़ेगा। जिंदगी में आप कुछ बन पाओगे और आप सब कुछ बनकर आगे निकलो। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। इसके साथ आरती बहन, रजिस्ट्रार श्री, वाइस चांसलर और साउथ गुजरात के सभी अध्यापकगण और आप सब श्रोता वर्ग का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और अंत में कहता हूं कि मेहरबा हो के बुला लो मुझे, मेहरबा हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं जो फिर न आ सकूं। नमस्कार, धन्यवाद। जय वीर नर्मद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस आज के वक्तव्य से विद्यार्थियों का मनोबल सच में बहुत ही स्ट्रांग हुआ होगा। आपने जो शुरुआत की, जिसमें हर एक युवा वर्ग का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याओं से जो उनको फेस करना हुआ है ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, उनसे कैसे वो बाहर आ सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो विद्यार्थी खुद, व्यक्ति खुद है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। और अगर वो अपने मन में नहीं हारता है तो बाहरी दुनिया उसे नहीं हरा सकती है। ये जो दो सेंटेंस काफी उदाहरणों के साथ आपने विद्यार्थियों के मन में आसानी से समझ में आया, उस तरह से समझाया, खास करके क्रिकेट और जो हिटलर के स्टोरीज है जो कि आसानी से युवा वर्ग के दिमाग में वो समझ में आ सकती है। हो सकता है कि क्योंकि हमारा विषय आंकड़ा शास्त्र है, स्टैटिस्टिक्स है, तो ये चीजें हम इतनी आसानी से नहीं समझा पाते जो आपने समझाई है। और उसी प्रकार जो मेडक की आपने स्टोरी बताई है बहुत ही अप्रोप्रिएट है इस सिचुएशन में, क्योंकि जहां पे देखो हर कोई यही कहता है कि बहुत ही दिक्कत है, ऐसा कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मन में वो ठान ले विद्यार्थी तो कुछ भी कर सकता है। और उसके लिए जो मुख्य बात है जिस पे उसे कंसंट्रेट करना है, जो आपने सचिन तेंदुलकर की उनका उदाहरण देके समझाया कि प्रैक्टिस इज द मेन थिंग दैट दे पीपल शुड डू, और जिसकी वजह से वो जो भी अभी फेस कर रहे हैं डिफिकल्टीज,
इसमें काफी जो स्टूडेंट्स के हमने मैसेजेस पढ़े हैं, उसमें हमें जो हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ये मैंने खुद ने भी अनुभव किया है, तो कनेक्टिविटी के इश्यू रहते हैं, कई बार टीचर्स की तरफ से, कई बार स्टूडेंट्स की तरफ से। फिर भी जितना जिससे हो पाया उन्होंने सबने किया है, जो भी कुछ कर पाए हैं उसी से लेके अपना मनोबल मजबूत रख के, अगर जैसा आपने समझाया है उस तरह से हर एक विद्यार्थी अपनी पूरी ताकत लगा के सच्चे मन से प्रैक्टिस करेगा, सच्चे मन से अभ्यास करेगा, तो अवश्य ही सफल होगा। और जैसे आपने बताया कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे विद्यार्थी मार्क्स के, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, वो कामयाब नहीं भी होता है, तो ये जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है। आगे हम और परीक्षाएं देते रहेंगे। जैसे आपने क्रिकेट के बारे में मेंशन किया था, तो अभी पहले वनडे 5-5 दिन के टेस्ट हुआ करते थे, जहां पे पिच पे टिकना ही बहुत मुश्किल होता था क्रिकेटर्स के लिए। उसके बाद वनडे आया, उसके बाद 2020 आया। तो ये जैसे कोरोना काल हमें फिर से इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन 5 दिन की टेस्ट मैच की तरफ लेके जा रहा है, जहां पे टिकना ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, कि स्कोर्स चाहे ना हो लेकिन पिच पे टिके रहना भी एक कामयाबी माना जाएगा। ये सारी चीजें जिस आसानी से और जो उदाहरण देके आपने समझाई है, बहुत ही मजा आया, और आई एम श्योर कि बच्चों को भी मनोबल मजबूत हुआ होगा। और आगे भी जब भी हम विद्यार्थियों के बारे में हम सोचेंगे, तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब और फेसबुक पे आपको कभी भी अवेलेबल रहेगी, जब भी आप देखना चाहे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि विद्यार्थी जब भी थोड़ा सा नेगेटिव फील करेगा, और अगर आपका ये वक्तव्य वो फिर से सुनेगा, तो उसके दिमाग में से जो नेगेटिविटी है, उसके आसपास के माहौल की जो नेगेटिविटी है, उससे वो अपने आप को दूर रख पाएगा। और अगर वो नेगेटिविटी से दूर रहेगा, तो उसने 90% जंग जो है वो जीत ली है। तो ये जो आपने बात समझाई है सरलता से और उदाहरण जो अलग अलग देके, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारी विद्यार्थियों की तरफ से, हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एक बात जो मैं आपके इंट्रोडक्शन में बताना भूल गई थी, जो कि हमारे वाइस चांसलर श्री ने नोटिस किया, कि ये जो टाइटल है कोरोना के विक्टिम नहीं विक्टर बनो, ये टाइटल भी आई वुड लाइक टू मेंशन इट, कि ये टाइटल भी मुरुगेश भाई ने ही हमको सजेस्ट किया था। तो इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट। एंड जिस तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि विक्टिम के बजाय कैसे विक्टर बना जाए, तो अगर इनकी आपकी दी हुई सारी जो टिप्स है उस पे अगर विद्यार्थी अमल करेगा, तो डेफिनेटली वो विक्टिम नहीं विक्टर बनेगा। और इसी के साथ आपका अगेन यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे सारे विद्यार्थियों की तरफ से, मेरे विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद करते हुए हम इस कार्यक्रम का जो है वो अंत करने से पहले मैं हमारे कलीग डॉक्टर शीतल बेन को वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। डॉक्टर शीतल। Thank you, madam. On behalf of Department of Statistics, Veer Narmad Southwest University, Surat, I am here to present the vote of thanks for today's webinar on Corona ke victim nahi victor bano. I would like to thank our guest speaker, Dr. Murugesh Vaishnav sir, for delivering wonderful lecture and enlightening us with their knowledge. Today's lecture was full of knowledge and interesting things. It gives deep insight into the topic and it's relieved some interesting facts. I am pretty sure that the precious knowledge that Dr. Murugesh Vaishnav sir gave us will definitely be helpful to students in their mental health, study and also in future. Once again, I would like to thank Dr. Murugesh sir
for taking out time for us, enlightening us with the knowledge. I would also like to thank our Honorable Vice Chancellor, Dr. K. N. Chawda sir, for permitting us to conduct this webinar. I am very thankful to our in-charge registrars, Sri A.V. Taduk sir, for providing us all the facilities for conducting this webinar. I would also like to thank Dr. Aarti Rajyaguru madam for organizing this webinar and inviting Dr. Mrugesh Vaishnav sir for delivering lecture. I take this occurrence to thank the entire technical committee members for organizing this webinar to watch live on YouTube and Facebook. I would like to thank Ms. Rudy Davi for the prayer. It is not possible to thank everyone for such an appreciating involvement and the willingness they have expressed to finish the task. I am very much thankful to all the Senate and Syndicate members, various faculty deans, all the head of the department, principal of various colleges, faculties, staff members, and students from various colleges and department who are joined with us on YouTube and Facebook. I would end my speech here. Thank you. Have a great day ahead. Thank you very much. Thank you.